हम पढ़ेंगे ड्यूटरनॉमी चैप्टर 1, चैप्टर 2 इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तेरे सच्चाई के सामने सारा झूठ पर्दाफाश हो जाता है। तेरे सच्चाई की ताकत पिता परमेश्वर हमें भटकने से पिता बचाती है। तेरी सच्चाई की ताकत हमारी नींव बंद कर पिता परमेश्वर हमें तेरे सच्चाई में आगे बढ़ने का रास्ता देती है। तेरा सच्चाई सब कुछ है मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे सच्चाई से सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है। इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सच्चाई मिलाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। रिबांदिका पर शक्ल खुला बरकासी आंदोलन मेरे परमेश्वर, तू अपने सच्चाई के साथ हमारे साथ होने के लिए मांगती हूँ खुदा। तो अपने सच्चाई के साथ हमारे साथ हो खुदा। हम में कुछ भी झूठ तू पकड़ता है खुदा परमेश्वर, तो उसे खींच कर टुकड़े कर दे, उसको ख़त्म कर दे। वो हमारे अंदर रुकना नहीं चाहिए, उसको पर्दाफाश कर। झूठ हमारे अंदर ठहरना नहीं है खुदा परमेश्वर। जो भी झूठ है खुदा, उसे पकड़ ले, उसे तोड़ दे, उसे टुकड़ों में बदल दे, उसको हमारे अंदर रुकने मत दे। झूठ पर हमारी नींव बंधने मत दे पिता परमेश्वर। झूठ हमें सच लगने मत दे पिता परमेश्वर। जो झूठ है वह झूठ ही रहे हमारे सामने खुदा मेरे परमेश्वर। वो अपने रूप बदलने ना पाए खुदा, वो अपने शिफ्ट ना करने पाए खुदा। हम विनती करते जो झूठ है खुदा, उसकी ताकत हमेशा हमारे सामने कमज़ोर पड़ती रहे। झूठ की शक्तियाँ हमारे सामने कमज़ोर पड़ती रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे ड्यूटरनॉमी फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Moses' speech at the end of the 40th year, he briefly rehearsed the story of God's promise to Israel and his anger for their incredibility and disobedience. First verse. This be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan, in the wilderness, in the plain over against the Red Sea, between Paran and Tophel, and Laban and Hazeroth, and Dizahab. There are 11 days' journey from Horeb by the way of Mount Seir unto Kadesh Barnea. And it came to pass in the 40th year, in the 11th month, on the first day of the month, that Moses spake unto the children of Israel according unto all that the Lord had given him in commandment unto them. After he had slain Sihon the king of the Amorites, which dwelt in Heshbon, and Og the king of Bashan, which dwelt at Astaroth in Edrei, on this side Jordan in the land of Moab, began Moses to declare this law, saying, The Lord our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mount. Turn you and take your journey and go to the mount of the Amorites, and unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hills, and in the vale, and in the south, and in the seaside, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates. Behold, I have set the land before you. Go in and possess the land, which the Lord sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them, and to their seed after them. And I spake unto you at that time, saying, I am not able to bear you myself alone. The Lord your God hath multiplied you, and behold, ye are this day as the stars of heaven for multitude. The Lord God of your fathers make you 1,000 times so many more as ye are, and bless you as he hath promised you. How can I myself alone bear your encumbrance, and your burden, and your strife, and take you wise men and understanding and known among your tribes, and I will make them rulers over you? And he answered me and said, The thing which thou hast spoken is good for us to do. So I took the chief of your tribes, wise men and known, and made them heads over you, captains over thousands, and captains over hundreds, and captains over fifties, and captains over tens, and officers among your tribes. And I charged your judges at that time, saying, Hear the
causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother and the stranger that is with him. Ye shall not respect persons in judgment, but ye shall hear the small as well as the great. Ye shall not be afraid of the face of a man, for the judgment is God's, and the cause that is too hard for you. Bring it unto me, I will hear it. And I commanded you at that time all the things which ye should do. And when we departed from Horeb, we went through all that great and terrible wilderness which ye saw by the way of the mountain of the Amorites, as the Lord our God commanded us. And we came to Kadesh Barnea, and I said unto you, Ye are come unto the mountain of the Amorites, which the Lord our God doeth give unto us. Behold, the Lord thy God hath set the land before thee. Go up and possess it, as the Lord God of thy fathers hath said unto thee. Fear not, neither be discouraged. And ye came near unto me every one of you, and said, We will send men before us, and they shall search us out the land, and bring us word again by what way we must go up, and into what cities we shall come. And the saying pleased me well, and I took 12 men of you, one of a tribe. And they turned and went up into the mountain, and came unto the valley of Eshcol, and searched it out. And they took off the fruit of the land in their hands, and brought it down unto us, and brought us word again, and said, It is a good land which the Lord our God doeth give us. Notwithstanding ye would not go up, but rebelled against the commandment of the Lord your God. And ye murmured in your tents, and said, Because the Lord hated us, he hath brought us forth out of the land of Egypt, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us. Whither shall we go up? Our brethren have discouraged our hearts, saying, The people is greater and taller than we. The cities are great and walled up to heaven, and moreover we have seen the sons of the Anakims there. Then I said unto you, Dread not, neither be afraid of them. The Lord your God, which goeth before you, he shall fight for you, according to all that he did for you in Egypt before your eyes, and in the wilderness, where thou hast seen how that the Lord thy God bare thee, as a man doeth bear his son, in all the way that ye went, until ye came into this place. Yet in this thing ye did not believe the Lord your God, who went in the way before you, to search you out a place to pitch your tents in fire by night, to shew you by what way ye should go, and in a cloud by day. And the Lord heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying, Surely there shall not one of these men of this evil generation see that good land which I swear to give unto your fathers, save Caleb the son of Jephunneh. He shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath wholly followed the Lord. Also the Lord was angry with me for your sakes, saying, Thou also shalt not go in thither, but Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither. Encourage him, for he shall cause Israel to inherit it. Moreover, your little ones which ye said should be a prey, and your children which in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in thither, and unto them will I give it, and they shall possess it. But as for you, turn you and take your journey into the wilderness by the way of the Red Sea. Then ye answered and said unto me, We have sinned against the Lord. We will go up and fight, according to all that the Lord our God commanded us. And when ye had girded on every man his weapons of war, ye were ready to go up into the hill. And the Lord said unto me, Say unto them, Go not up, neither fight, for I am not among you, lest ye be smitten before your enemies. So I spake unto you, and ye would not hear, but rebelled against the commandment of the Lord, and went presumptuously up into the hill. And the Amorites which dwelt in that mountain came out against you, and chased you as bees do, and destroyed you in Seir, even unto Hormah.
And ye returned and wept before the Lord, but the Lord would not hearken to your voice, nor give ear unto you. So ye abode in Kadesh many days, according unto the days that ye abode there. Chapter 2. The story is continued. They were not to meddle with the Edomites, nor the Moabites, nor the Ammonites, Sihon the Amorite to be subdued. Then we turned and took our journey into the wilderness by the way of the Red Sea, as the Lord spake unto me. And we compassed Mount Seir many days. And the Lord spake unto me, saying, Ye have compassed this mountain long enough, turn you northward. And command thou the people, saying, Ye are to pass through the coast of your brethren, the children of Esau, which dwell in Seir, and they shall be afraid of you. Take ye good heed unto yourselves, therefore. Meddle not with them, for I will not give you I will not give you of their land, no, not so much as a foot breadth, because I have given Mount Seir unto Esau for a possession. Ye shall buy meat of them for money, that ye may eat, and ye shall also buy water of them for money, that ye may drink. For the Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hand. He knoweth thy walking through this great wilderness. This 40 years the Lord thy God hath been with thee. Thou hast lacked nothing. And when we passed by from our brethren, the children of Esau, which dwelt in Seir through the way of the plain, from Elath and from Eslon Gaber, we turned and passed by the way of the wilderness of Moab. And the Lord said unto me, Distress not the Moabites, neither contend with them in battle, for I will not give thee of their land for a possession, because I have given Ar unto the children of Lot for a possession. The Emims dwelt therein in times past, a people great and many and tall as the Anakims, which also were accounted giants as the Anakims. But the Moabites called them Emims. The Horims also dwelt in Seir before time, but the children of Esau succeeded them, when they had destroyed them from before them, and dwelt in their stead, as Israel did unto the land of his possession, which the Lord gave unto them. Now rise up, said I, and get you over the brook Zereth. And we went over the brook Zereth. And the space in which we came from Kadesh Barnea until we were come over the brook Zereth was 38 years, until all the generation of the men of war were wasted out from among the host, as the Lord sware unto them. For indeed the hand of the Lord was against them, to destroy them from among the host until they were consumed. So it came to pass, when all the men of war were consumed and dead from among the people, that the Lord spake unto me, saying, Thou art to pass over through Ar, the coast of Moab, this day. And when thou comest nigh over against the children of Ammon, distress them not, nor meddle with them. For I will not give thee of the land of the children of Ammon any possession, because I have given it unto the children of Lot for a possession. That also was accounted a land of giants. Giants dwelt therein in old time, and the Ammonites called them Zamzummims, a people great and many and tall as the Anakims, but the Lord destroyed them before them, and they succeeded them and dwelt in their stead, as he did to the children of Esau, which dwelt in Seir, when he destroyed the Horims from before them, and they succeeded them and dwelt in their stead, even unto this day. And the Avims, which dwelt in Hazarim, even unto Uzzah, the Caphtorims, which came forth out of Caphtor, destroyed them and dwelt in their stead. Rise ye up, take your journey, and pass over the river Arnon. Behold, I have given into thine hand Sihon the Amorite, king of Heshbon, and his land. Begin to possess it, and contend with him in battle. This day will I begin to put the dread of thee and the fear of thee upon the nations that are under the whole heaven,
who shall hear a report of thee, and shall tremble and be in anguish because of thee? And I sent messengers out of the wilderness of Kedmoth unto Sihon, king of Heshbon, with words of peace, saying, Let me pass through thy land, and I will go along by the highway. I will neither turn into the right hand nor to the left. Thou shalt sell me meat for money, that I may eat, and give me water for money, that I may drink. Only I will pass through on my feet, as the children of Esau which dwell in Seir, and the Moabites which dwell in Ar did unto me, until I shall pass over Jordan unto the land which the Lord our God giveth us. But Sihon, the king of Heshbon, would not let us pass by him. For the Lord thy God had hardened his spirit, and made his heart obstinate, that he might deliver him into thy hand, as appeareth this day. And the Lord said unto me, Behold, I have begun to give Sihon and his land before thee, begin to possess, that thou mayest inherit his land. Then Sihon came out against us, he and all his people, to fight at Jahaz. And the Lord our God delivered him before us, and we smote him and his sons and all his people, and we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men and the women and the little ones of every city. We left none to remain. Only the cattle we took for a prey unto ourselves, and the spoil of the cities which we took from Aroer, which is by the brink of the river of Arnon, and from the city that is by the river even unto Gilead. There was not one city too strong for us. The Lord our God delivered all unto us. Only unto the land of the children of Ammon thou camest not, nor unto any place of the river Jabbok, nor unto the cities in the mountains, nor unto whatsoever the Lord our God forbade us. व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। आपने व्यवस्था विवरण बहुत ध्यान से सुनना है, ओके? क्योंकि जितना भी दुनिया के अंदर चल रहा है, जो भी अच्छा काम या बुरा काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? दुनिया पूरी तरह से पाप और मृत्यु के व्यवस्था में है, ओके? पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था, दुनिया सब उसके अंदर है। इसकी वजह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि यही व्यवस्था एक सिर्फ इस्राएलियों को दिया हुआ था, लेकिन अभी वो व्यवस्था सब जगत के अंदर, सब जो अन्य जातियों में गिनती किए जाते हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था काम करती है, ओके? उनके पाप, अगर उनके पाप और फिर उनका क्या कहते हैं उसको, उनका गलतियाँ, ओके, ये व्यवस्था काउंट करता है, इसके अंदर काउंट होता है। तो अब सब कुछ इसके अंदर नहीं दिया है ना, तो जो दिया है कम से कम उतना तो आप समझ सकते हैं, ओके? जितना दिया है उतना तो आप कम से कम समझ सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपके फैमिली के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही होगी जो इस व्यवस्था में आपको बता रहा है ऐसा क्यों होता है, ओके? तो आपको वो एरिया ऑफ लाइफ सुधारने का चांसेस है, ओके? प्रभु यीशु को आप माफ़ी मांग सकते हैं। जैसे अगर समझो आपके घर में, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, हमेशा ही ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझो फॉर एग्जाम्पल जॉब नहीं मिल रहे, ओके? तो जॉब करने का कारण क्या है? जॉब करने का कारण यही है कि आपको पैसे चाहिए, बराबर है, ओके? लेकिन आपको अगर समझो जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको पैसे कमाने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब गरीबी आपका पीछा करना चाहिए, है ना? भूखमरी आपका पीछा करना चाहिए, है ना? बीमारियों में आपके पास पैसे नहीं रहना चाहिए, यही उसका मकसद रहता है। जो पैसों से किया जाता है काम, वो आपके पास नहीं होना चाहिए। पैसों से हम मटेरियल्स को खरीदते हैं ना, पैसों से हम अपने लिए जगह, ज़मीनों को, घरों को खरीदते हैं, है ना? तो पैसा ये एक चीज़ है जिसके कारण आप क्या क्या कर सकते हैं वो रोक देने के लिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है,
ओके, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अगर समझो ऐसा अगर असर परमेश्वर आपको यहाँ पे बता रहा है कि क्यों आया ये असर, क्योंकि उसने बोला अगर तुम आज्ञा पालन करोगे तो मिस्र में जो जो बीमारियां है उसमें से मैं तुम्हारे ऊपर, और इसके अलावा भी जो नई बीमारियां आने वाली है उसमें भी मैं तुमको पड़ने नहीं दूंगा। यानी परमेश्वर ने बोला है अगर तुम आज्ञा पालन नहीं करोगे तो ये श्राप तुम्हारे ऊपर आएंगे, अगर तुम आज्ञा पालन करोगे तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी बातों को करूँगा। ठीक है, तो कौन सी आज्ञा है वो, ये ध्यान देना है। ओके, तो आपको गरीबी का, भूखमरी का, बहुत सारी चीज़ें जो आपको चाहिए लेकिन आप खरीद नहीं सकते हैं, या आपको ऐसा जीवन जीना है लेकिन आप वैसे जी नहीं सकते, जो पैसे के ऊपर डिपेंड होता है, जगह ज़मीनें खरीदना, घरों को खरीदना, जो आप नहीं कर सकते हैं। ओके, और वही भाग है जो पैसों का आपके तरफ नहीं आ रहा है। तो इसका कारण क्या है, ये कारण आपको बताएगा व्यवस्था विवरण। उस कारण को लेना है, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगना है और हमारा रास्ता सीधा करके लेना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको फर्स्ट वर्ड से। इसके लिए मैंने आपको इंग्लिश में ये सब बातें नहीं बताया, हम हिंदी में पढ़ते समय इसे देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे फर्स्ट वर्ड से, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स। होरेब से प्रस्थान की आज्ञा। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और परान और तोपेल के बीच और लबान, हसेरोत और दीजाहाब में सारे इस्राएलियों से कही, वे ये हैं। होरेब में कादेश बरने तक सेईर पहाड़ के मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन और बाशान के राजा अश्तारोतवासी ओग को एद्रेई में मार डाला, उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यो करने लगा। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कुछ करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। मूसा द्वारा न्यायियों की नियुक्ति। 9 वचन से आगे। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेले नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000, 100, 50 और 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकद्दमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े को की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकद्दमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए। भेदियों का भेजा जाना,
हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियों की पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारे परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर ने, हाँ क्या लिखा है, मनुष्यों के बारे में बोला है। क्या लिखा है यहाँ पर, वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों की पहाड़ देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। हाँ, आपको परमेश्वर कुछ देता है तो परमेश्वर आपको देने के बाद में परमेश्वर को पता है वहाँ पे आपके अपोजिशंस कितने हैं, आपके विरोधी कितने हैं, आपके ऊपर जिद लगाने वाले कितने हैं। परमेश्वर को सब कुछ पता है। ओके, जब आप मैरिज करके किसी के घर में जा रहे हो तब भी परमेश्वर को पता है कि उस घर के कितने आपके विरोधी रहने वाले हैं, कितना सताव या कितनी आपको परेशान करने वाली बातें वहाँ पर रहने वाली। परमेश्वर जानता है जब आपको वो भेजता है कहीं तो वो जानता है वहाँ के अपोजिशंस, वहाँ के आपको परेशान में डालने वाले सब कुछ वो जानता है। ओके, वो जानता है। वो अंधा गुंगा बहरा परमेश्वर नहीं है। जब वो आपको देता है, आपके प्रार्थना के जवाब में आपको देता है, तब वो देखता है कि ये सब भी है वहाँ पर। ओके, अब बात देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। क्या मतलब बनता है इसका, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। आपको मासूम नहीं रहना है। ओके, आपको इनोसेंट नहीं रहना है, नासमझ बालकों की तरह नहीं रहना है। आपको आपका विरोधी है जानते हुए चलना है। ओके, आपका विरोधी आपको मार डालने तक की गलती कर सकता है, इतना ज़्यादा वो आपके क्रोधित है आपके ऊपर। ओके, और वो विरोधी कोई इंसान नहीं है, वो शैतान है, और शैतान को स्त्री जाति के साथ भयंकर पीड़ा है। ओके, भयंकर पीड़ा है उसको। ठीक है, तो वो स्त्री जाति को किसी भी प्रकार से सम्मानित करके जीने नहीं देना चाहता है। ओके, उसके हर हिस्से का वो बेइज्जत करने के पीछे रहता है। वो हर तरफ से उसकी लूटपाट करके उसको बेरहमी से कुचलना चाहता है। ओके, ये शैतान का टारगेट है। ये उत्पत्ति के 3 अध्याय में ऑलरेडी लिखा है। ओके, इसके लिए मनुष्य सिर्फ उसकी मानता है, उसकी सुनता है। इसके लिए हम मनुष्यों को देख के छुपते हैं। हमको लगता है कि मनुष्य से छुप जाएंगे तो वो हमको परेशान नहीं करेंगे। मनुष्य का आंख से छुपना या नहीं छुपना फर्क नहीं पड़ता है। आपको शैतान का सामना करना है, मनुष्य का नहीं। समझ में आया? अब मनुष्य का हमारे साथ का कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब हम मनुष्य को नहीं देख रहे और शैतान को फाइट कर रहे तो हमको उस मनुष्य को ही देख के फाइट करना पड़ता है जो अभी सामना करना है उसका। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या देता है, देखो परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। यानी आपका विरोधी छुपके नहीं है, आपके सामने ऑलरेडी परमेश्वर ने एक्सपोज करके रखा है। ये आदमी, ये औरत, ये बच्चा, ये चीज़, ये चीज़ें, ये ऐसा, ये वैसा, ये यहाँ पे, ये ज़मीन के, ये चौराहे, ये तिराहे, ये रास्ते पर, ये पहाड़ के ऊपर, ये जंगली जानवरों में, ये इस प्रकार के, ये पक्षियों में, सब एक्सपोज कर दिया, सामने कर दिया आपके। समझ में आया? आपसे कुछ छुपा के नहीं रखा उसने, सब कुछ। ओके, ये चीज़ में ये डाल के दिया है, वो चीज़ में ये लगा के दिया है, इसके अंदर ये रखा हुआ है, ये ऐसा है, आपका सब कुछ एक्सपोज करके दे दिया शत्रु का। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी। ओके, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, अप में क्या है, डाउन में क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, एवरीथिंग एक्सपोज्ड। तो इसका मतलब क्या बन जाता है, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रुओं को दे दिया है। समझा? अब हमेशा याद रखो, जब परमेश्वर हमको एक्सपोज दे रहा है, एक्सपोजर दिखा रहा है शत्रु का, एक्सपोजर,
और शत्रु भी डर नहीं रहा है, एक्सपोज्ड रहना पसंद कर रहा है। हाँ, शत्रु जानते हुए काम कर रहा है कि हाँ पता है, सबको पता है हम लोग सता रहे हैं उसको, हाँ सबको पता है क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है, नहीं, मूर्खता है। अब क्या होगा देखो, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो। हालेलुया। हाँ, अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार बोला है, ना कि किसी के कहने के अनुसार, ना कि तुम्हारे मन को क्या लगता है उसके अनुसार, और ना ही तुमको कुछ सोच समझकर। यहाँ पर बोला है जो वचन के अनुसार है चढ़ो उनके ऊपर। आमीन। और मैंने प्रार्थना अपलोड की है, सारे प्रार्थना वैसे ही है, वचन के आधार से चढ़ाई किए हुए। आमीन। अब देखो आगे क्या है, उसे अपने अधिकार में ले लो। हालेलुया। उसे अपने अधिकार में ले लो, मतलब आपके अधिकार में अगर कोई कुछ है, अगर वो कोई किसी को मांगने के लिए आ जाएगा तो क्या आप दोगे उसको? नहीं दोगे। आपका अधिकार है, आपका हक है, तो वो क्या करेगा? आपसे छीनने की कोशिश करेगा। आमीन। तो अपने अधिकार में अपने सब चीजों को रखे हैं हम, यीशु के लहू में हमने रखा है, लेकिन शैतान के जगत में से छीना छानी करने की कोशिशें की जाती है। ओके, अब देखो आगे परमेश्वर क्या कहता है, तुमको अधिकार दिया है, तुम अपने अधिकार में रखो। यीशु ये घर तेरे लहू में रखते हैं, यीशु हमारा 4 दिशाएं तेरे लहू में रखते हैं, यीशु हमारे इर्द गिर्द हम तेरे लहू में रखते हैं। हमने प्रार्थना लगा दी, अधिकार कर लिया सब कुछ के ऊपर। अब फिर भी अगर आपको परेशानी आ रही है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ छीनाजोरी है। ओके, ये सिर्फ छीनाजोरी है, इसके अंदर कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है। ये बहुत बड़ा एक प्रकार का हारने का समय है शत्रु का। हाँ, कैसे? फिरौन को पता नहीं था उसका हारने का समय समंदर में आने वाला है। वो पीछे पीछे आता रहा, पीछे पीछे आता रहा, पीछे पीछे आता रहा, है ना। और क्या हो गया? वो खुद नहीं जानता है कि वहां से उसको पलट के कैसे जाना है, वो खुद एडजस्ट नहीं कर पाया। इसके लिए आपको इतना भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपको शत्रु के हाथ में नहीं दिया है। ओके, चाहे आप कोई परिवार में कुछ सहन कर रहे, चाहे आपका घर परिवार के लोग आपके विरोध है, आप अकेले मसीह है, चाहे कुछ भी रहे, आप जितने कमेंट्स देते, चाहे आपके पति प्रभु में नहीं है और वो आपके साथ झगड़े करते, फर्क नहीं पड़ता है। जितना लंबा समय आप परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार जियोगे, उतना लंबा समय आप ही वहां पर राज्य करने वाले हैं। आमीन। ओके, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपके पीछे आने वाले कैसे कैसे कौन से तरीके से गिरने वाले, आप नहीं जानते हैं। ओके, देखो क्या दिया है, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। हालेलुया। यानी शत्रु की ओर से जितना भी कुछ निकलेगा वो तुमको डराने के लिए और तुम्हारे मन को कच्चा करने के लिए, हिम्मत तोड़ देने के लिए। हाँ, तो छीनाजोरी का काम क्या रहता है? जिसकी जितनी ताकत वो जीतता है छीनाजोरी में, है ना। छीनने का है, अधिकार तो नहीं है किसी का कुछ लेने का, लेकिन हम लोग नहीं देंगे उनको, पता है, फिर भी छीनने की कोशिश करते हैं, है ना। अब कोशिश करने में आप बचाने की कोशिश करेंगे, वो छीनने की कोशिश करेंगे। ये छीनाजोरी का जो मामला है, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, जब वो छीनाजोरी में आपके पीछे पड़े रहते हैं छीनने के लिए, छीनने के लिए, छीनने के लिए, छीनने के लिए, तो आप सोचते हैं मैं कहाँ तक इनको निपटूं, है ना। तो आपका मन कच्चा हो जाता है। आप सोचते हैं अब ये छीनाजोरी इतनी बढ़ती जा रही है, अब मैंने क्या करना है, यानी आपको आगे रास्ते देखने के लिए डर लगता है ना। यही तो बात यीशु वचन कहता है कि मत डरो, ये छीनाजोरी वो तुम्हारे साथ नहीं कर रहे। ओके, वो फिरौन है जो अभी तक समंदर में पहुंचे नहीं है। अब समंदर में पहुंचने का समय जब आएगा तब तुमको पता चलेगा, तुम ढूंढने जाओगे उसको तो भी तुमको मिलेगा नहीं वो। हालेलुया, आमीन। ओके, तो यहाँ पे आपका बल नहीं लग रहा है बचाने में। ओके, यहाँ पे आपका बल नहीं लग रहा है, आपके पति का फाइटिंग के बीच में आपको रुकने का आपका बल नहीं है ये।
ओके, आप क्या कर रहे हैं? रोज प्रार्थना कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? रोज बाइबल रीडिंग कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? रोज परमेश्वर के सामने बातें कर रहे हैं? आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं? आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। फिर आपको ये छीना छानी करने वालों के शक्तियों से नहीं डरना है, क्योंकि आप जो चल रहे हैं वो चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है? अब छीना जोरी का सिर्फ ये देखना है, छीना जोरी करने वाला समंदर में कब पहुंचता है। ओके, और जब पहुंचेगा तो आपको कैसे पता चलेगा पहुंच गया? गुड न्यूज़ आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपके पीछे कोई नहीं आता है और ना ही आप किसी को देख के दौड़ते हैं। समझ में आया? आप जैसा लिखा है, जो कुछ ऐसा एक वचन है घमंडी के बारे में है, एक ऐसा वचन है, मैं उसको प्रोवर्ब्स में है, नीति वचन में, वो लोग ऐसे दौड़ते हैं जैसे उनके पीछे कोई पड़ा भी नहीं है तो भी वो दौड़ते रहते हैं। ओके, यानी उनको लगता है कि कोई है हमारे पीछे पड़ा हुआ, कोई है हमारे पीछे पड़ा हुआ, और वो दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते, कोई है तो नहीं लेकिन दौड़ते हैं। उसके समान नहीं है। हमको पता है हम क्या है। ओके, हम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बताओ हम क्या है? हम वो है जिनको वाचा का प्रदेश दे रहा है परमेश्वर। ओके, हम वो है जिसने हमको ये घर दिया, हम वो है जिसने हमको ये परिवार दिया, हम वो है जिसने हमारे लिए, परमेश्वर ने हमें ज़मीन जायदाद दिया, हम वो है जो हमारे लिए परमेश्वर ने कोई जॉब दिया, हम वो है जो परमेश्वर ने हमको कोई प्रमोशन दिया, हम वो है जो परमेश्वर ने हमको कोई फ्रेंड्स दिए, कोई चर्च दिया, कोई परमेश्वर के अच्छे भले काम दिए। हम वो लोग हैं। ओके, अब छीना जोरी, ठीक है, अब आपका विरोधी, अब आपके ओपोनेंट्स। ओके, अब क्या होगा? छीना जोरी, आप अपने काम में मगन रहिए। ओके, छीना जोरी करने वालों के साथ आप निपटने की कोशिश मत कीजिए। ओके, वो अपने रास्ते चल रहे, समंदर में पहुंचने की कोशिश में है वो। ओके, आप निकल जाओगे आगे और वो आपको गुड न्यूज़ दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपकी ताकत नहीं है तो व्याकुल कहाँ से होना है? ओके, आप नहीं लड़ रहे तो आपको रास्ते बनाने की क्या ज़रूरत है? आप चलते जाओ आगे, आप परमेश्वर के समय को देखते जाओ आगे, बस देखते रहो क्या होता है। आमीन। इसके लिए परमेश्वर महान परमेश्वर है कि हमको परमेश्वर बदलने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये काम नहीं कर रहा है, अब तो ये लोग ऐसे ही है, अब तो मेरा पति बदल नहीं रहा है, अब तो मेरे घर परिवार के लोग बदल नहीं, अब मेरा तो ऐसे ही चल रहा है, अब भी कुछ फर्क नहीं है। तो आप क्या परमेश्वर को बदलने के समय आएगा? नहीं आएगा। ओके, फिर भी आप उसी परमेश्वर के पीछे हैं, फिर भी आप उसी परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी आप उसी परमेश्वर के लिए रुके हुए हैं, फिर भी आप वही कर रहे हो जो परमेश्वर के वचन में कहा गया है। आमीन। हम इसीलिए श्रेष्ठ जाति में है, हम इसीलिए परमेश्वर के संतान हैं, हम इसीलिए परमेश्वर के जाने जाते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के अलावा और कुछ बदली करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। आमीन। सिर्फ और सिर्फ, जैसे दनियल ने बोला, चाहे हमें परमेश्वर बचाए या ना बचाए, फिर भी हम परमेश्वर को छोड़ के और किसी को वैल्यू नहीं दे सकते हैं। ओके, हम चाहे हम कुछ भी रहे, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे यहाँ होता है हम उसको वो फॉलो नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये सीक्रेट है हमारे अंदर परमेश्वर के काम कैसे परमेश्वर करवाता है, कैसे वो हमको सेपरेट करके रखता है, कैसे वो हमको अलगाव में रखता है। हालेलुया। कैसे वो हमको व्याकुल होने नहीं देता है, कैसे वो हमें हड़बड़ी में जाने नहीं देता है। ये सीक्रेट है परमेश्वर का। आमीन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 22 वचन से आगे, और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया, और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। हालेलुया। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया,
किंतु अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाए? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, और हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हाँ, अब मुझे बताओ, अब आप छीनाजोरी के सामने हो या परमेश्वर है? आप खुद बताओ, है ना? परमेश्वर बोल रहा है, मैं खुद हूँ तुम्हारे छीनाजोरियों के साथ फाइट करने वाला, मैं खुद हूँ और मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ। आपको हमेशा ये वचन को बोलना है, ओके? क्योंकि देखो, जब आप कहीं पर भी होते हैं, कहीं पर भी जाते हो, तो सबसे पहला आप नहीं रहते हैं, सबसे पहला स्पिरिचुअल किंगडम रहता है, ओके? अगर समझो आप जॉब लेने के लिए जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो आपके बॉस सबसे पहले आपको नहीं दिखेंगे, आपको सबसे पहले इंटरेक्शन होगा उसके स्पिरिचुअल किंगडम के पावर का। समझ में आया? इसके लिए परमेश्वर का पावर आपके सामने सामने चलना चाहिए, ताकि जो जहां कहीं पर भी जाओ तो लोग आपको पहले नहीं इंटरैक्ट करेंगे, आपके पावर को इंटरैक्ट करेंगे। आमीन। इसके लिए कहाँ कहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन आप एंट्री करने से पहले हमने कुछ महसूस किया, ओके, और हम विश्वास कर लिए कि सच में परमेश्वर आपके साथ है। समझ में आया? तो हम नहीं, हमारे आगे हमारा स्पिरिचुअल किंगडम का पावर जाता है। समझ में आया? जहाँ पर भी हम जाए, जहाँ पर भी हम रहे, जहाँ पर भी हम जाते उठते बैठते सोते, सभी वक्त में सबसे पहला सामना स्पिरिचुअल किंगडम का होता है। हमारे स्पिरिचुअल किंगडम और हम जहाँ कहीं हो वहाँ के स्पिरिचुअल किंगडम, सबसे पहला इंटरेक्शन उनका होता है, और फिर बाद में हम मनुष्य का होता है। समझ में आया? इसकी वजह से हमारे सोच डगमगाते हैं, इसकी वजह से डर हमको सता सकता है, इसकी वजह से हम हड़बड़ी या कुछ महसूस कर सकते हैं, ओके? कुछ भी रहे, अच्छी बात रहे बुरी बात रहे, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल किंगडम, हमारे अंदर की शक्ति, हमारा परमेश्वर हमको पूरी तरह से हमारी पहचान में बनाए रखना है, और सामने चाहे दुनिया की कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, वी डोंट केयर, ओके? हमारा परमेश्वर हमको अगुवाई करता है, और हमारा परमेश्वर सबसे पहला उनके स्पिरिचुअल किंगडम को कांटेक्ट में आ जाता है। हालेलुया। आपके कांटेक्ट में कौन आएगा? उनका स्पिरिचुअल किंगडम आपके कांटेक्ट में आता है। उनके कांटेक्ट में कौन जाएगा? हमारा परमेश्वर का स्पिरिचुअल किंगडम उनके कांटेक्ट में जाता है। समझ में आया? तो आपको हमेशा ये वचन बोलना है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह अब तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है, आप नहीं लड़ते हो विरोधियों के साथ, आपको विरोधियों से कुछ लेना देना भी नहीं है, ओके? आपके विरोधी कितने क्या है और कैसे है, वी डोंट केयर, हमको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्या उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको याद करना है, ओके? हमारे आगे कौन जा रहा है वो खुद उनकी जानकारी लेगा, आमीन। वो खुद उनके हिसाब लेगा, वो खुद उनके सामना करेगा, आमीन। तो हमारा किंगडम, परमेश्वर के आत्मा का किंगडम हमारे आगे आगे चलता है। अब आपको और आगे जाना है। देखिए क्या लिखा है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमको उठाए हुए चलाता है, ओके? इसके लिए हम आराम से चल रहे हैं प्रभु में विश्वास करते हुए, क्योंकि परमेश्वर हमको उठाए हुए रोज का रोज जा रहा है, ओके? और हमारे साथ जो अपोज आ जाता है वो कौन है? वो अपोज हमको नहीं है, वो हमारे पावर को अपोज है। हमको नहीं अपोज आ रहा है, वो पावर को
चैलेंज कर रहे हैं। आमेन। हमारे सामने कौन सा पावर है? यहोवा का पावर है। ओके, यीशु मसीह हमारा पावर है और वो हमारे सामने सामने जा रहा है। तो डेफिनेटली वो जो अटैक करेंगे वो किसको करेंगे? पावर को अटैक कर रहे, हमको नहीं कर रहे। क्या वो पावर हमारे आगे आगे जो जा रहा है, क्या वो हमको रखवाली कर सकता है? क्या वो हमको ठीक रख सकता है? क्या वो हमारी मानता है? क्या वो हमारी आवाज़ को सुनता है? क्या वो हम चाहते वैसा करता है? ये टेस्ट करते हैं वो लोग, दैट्स ऑल। ओके, तो हमारा पावर उनको जवाब देता ही रहता है। इसके लिए आपको बारंबार ऐसे लगता है फिर लड़ाई हो गया, फिर झगड़ा हो गया, फिर पति ने मारा, फिर पति ने ऐसा बोला, फिर परिवार बिगड़ा, फिर ये हो गया, फिर मेरे घर में ऐसा हो गया, फिर मेरे घर में वैसा हो गया, फिर मेरा ये हो गया। ये आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपके सामने जो पावर है वो उसके ऊपर अटैक करे, वो आपके ऊपर नहीं। ओके, वो देखना चाहते हैं क्या वो पावर आपके लिए कुछ करता है कि नहीं। आमेन। तो वो तो करता ही करता है, ये तो बता दिया है परमेश्वर ने आपको, है ना। क्या है यहाँ पर? इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। ओके, तो आपके ऊपर जब पड़ती है तब आपको लगता है कि परमेश्वर आपका साइड से नहीं है। आपको किसने बोला कि विरोधी आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे? आपके ऊपर नहीं कर रहे। ओके, वो पावर के ऊपर चढ़ाई कर रहे। ठीक है, तो आपको विश्वास रखना है कि वो पावर जीतने वाला पावर है, वो मुर्दों में से जिलाया गया पावर है, वो पुनरुत्थान किया हुआ परमेश्वर का पावर है। आमेन। और वो जीतता ही जीतता है, उसके लिए हार की कोई बात और रास्ते नहीं है। आमेन। जो तुम्हारे आगे आगे इसीलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आगे आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। देखो कैसे इसकी बयान करें कि रोज की हमारी फाइट शैतान के साथ है। तो रोज क्या है? वो पावर्स हमारे पावर के साथ फाइट कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं। ओके, वो पावर्स हमारे साथ नहीं, हमारे पावर्स के साथ फाइट कर रहे। ठीक है, और फिर भी ये पावर क्या कर रहा है परमेश्वर का? रोज सुबह उठाता है, रोज नाश्ता करवाता है, रोज अच्छी अच्छी चीजें देता है, रोज चाय पानी कराता है, रोज हमको भलाई के साथ लोगों को आशीष करते हुए लेकर जाता है, रोज हमारा जीवन बदलता हुआ दिखाई देता है, रोज हम नए सोच नए विचारों से चलते हैं, रोज हमारा दिन शुरू होता है, दिन अंत होता है, हम परमेश्वर के भले कामों को देखते रहते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर में मगन रहते, परमेश्वर की स्तुति करते, परमेश्वर की प्रशंसा करते, परमेश्वर के वो काम हम देखते हैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में जो हमने पहले कभी नहीं देखे। तो हमारा पावर हमको उनसे कनेक्ट करवा के दिखाता है, देख यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ना। तो यही तो है तेरे साथ भी। ओके, यही तो है तुम्हारे लिए भी, यही तो है हम सबके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ। ओके, तो हमारी तसल्ली बनता है, हमें आशा देता है। ओके, तो ये सब कौन करता है? बाइबल रीडिंग करता है, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज करवाता है। ओके, हमको अगर हमने नहीं किया तो हमारे लोग हमको बोलते हैं आज नहीं किया आपने, आप कीजिए, अभी कीजिए, क्यों आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, है ना। तो इस प्रकार से हमको परमेश्वर कितना हमको उसके हाथों में उठा के चला रहा है। ये कौन चला रहा है? परमेश्वर, परमेश्वर का पावर। आमेन। अब देखिए इजराइल को दंड मिलना, आगे देखो 34 वचन देखो। अगर ये पावर को आप नहीं पहचानोगे, आप कुड़कुड़ाओगे, आप परमेश्वर को दोष दोगे, गलती हो जाएगी आपसे। ओके, अगर आप शत्रु को पावरफुल मानोगे और आप अपने आप को कमजोर देखोगे तो गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके साथ फाइट नहीं है, ये आपके सामने सामने जो चल रहा है पावर, उसके साथ फाइट है ये। ओके, तो आपको उससे मतलब नहीं है, आप हारते हैं क्या जीतते उससे मतलब नहीं है, आपका पावर दी एंड ठहराता है। ओके, आपका पावर जो परमेश्वर है वही आपका द बिगिनिंग बनता है और द एंड भी ठहराता है। ओके, तो उसके बीच में आपके साथ क्या हो रहा है मायने नहीं रखता है। आमेन। 34 वचन से पढ़ेंगे। देखो, इसकी वजह से अपने मुंह बंद रखो, परमेश्वर के विरोध में बातें मत करो। ठीक है, देखिए क्या है। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से
एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यह पुण्य का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे। देखो, हियाव देने वाले लोगों को परमेश्वर मांगता है। ओके, परमेश्वर मांगता है कि तुम ऐसे बनो जो आगे लीडर्स आगे जा रहे उनको हियाव दो। ओके, हियाव देने वाले लोग बनो तुम। ठीक है, देखो यहाँ पे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। ठीक है, तो आपके लीडर्स, आपके अगुवे, आपके पास्टर्स, आपके जो भी परमेश्वर ने आपको दिए हैं घर के अधिकारी में, आपके मम्मी पापा अगर आपको संभाल रहे वो प्रभु में है, तो इनको हियाव देना पड़ता है। ठीक है, आगे, फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश करेंगे, और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। ओके, तो परमेश्वर ने अब क्या हो गया, पनिशमेंट डाला उन लोगों के ऊपर जिन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना और शत्रु के बल को महत्व दिया। ओके, उन्होंने परमेश्वर के बल को तुच्छ जाना। उन्होंने बोला परमेश्वर का बल तो हमारा कोई काम नहीं कर रहा है। ओके, शत्रु के बल तो इतने ज्यादा है। हाँ, शत्रु का बल देखो कैसे चढ़ाई कर रहा है, शत्रु के बल देखो कैसे, हम तो अपनी आशा खो रहे हैं। ओके, हम तो हियाव टूट रहे हैं। ओके, जब उन्होंने परमेश्वर के बल को तुच्छ जाना तब उनकी हालत देखो क्या हुआ, वो वाचा के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सके। तो हमारे दर्शन परमेश्वर हमको नहीं देता है। ओके, हमारे लिए परमेश्वर जो काम ठहराया है वो हमारे जिम्मेदारी में नहीं देता है। ओके, हम बालकों के समान ही फिर विश्वासी जीवन जी रहे होते हैं। हमको बड़े बड़े काम परमेश्वर नहीं देता है। ठीक है, तो वो नहीं देता है, वो सम्मान, वो ऊंची बातें, वो ऊंचा रहना, वो ऊंचे तरीके, वो ऊंचे ऐलान किए हुए बातें वो नहीं देता है हमको। ओके, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उसके पावर को तुच्छ जानकर वहां पर भी गड़बड़ी करें। ओके, क्योंकि हर लेवल में पावर्स हैं, हर लेवल में विरोधी के पावर्स हैं। ओके, आप जितने ऊंचे चढ़ोगे उतनी ऊंची पावर्स आपके सामना करने के लिए रहेगी। ओके, वो आपके सामना नहीं करते, आपके सामने जो पावर है उसका सामना करते हैं। ओके, वो सामना इसीलिए करते हैं कि आपको जांचते हैं, ये आपके सामने जो पावर वो देख रहे क्या वो आपकी सहायता करता है कि नहीं। हालेलुया। तो इसके लिए आप नहीं है तो आप नहीं है तो आप क्यों रोते हो, फिर आप क्यों बुरा भला कहते हो किसी को, आप क्यों किसी के बारे में फिर कुछ सबक सिखाने के लिए उठ जाते हो, आप क्यों अधिकार लेते हो अपने अंदर से कि मैं अभी इसको कुछ सुनाऊंगी, मैं इसको कुछ बोलूंगी, मैं इसके सामने जाकर इसको सुनाऊंगी, क्या तू ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, अभी देख ये क्या है, अभी देख वो क्या है। क्या करना है आपको, आपके पास वो ज्ञान इसीलिए है क्योंकि आप उजियाले में हैं। इसके लिए आपको सही सही दिखाई देता है कि वो गलत बोलते हैं, आप सही करते हैं, वो गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर उजियाला है, परमेश्वर के मुख का प्रकाश है वो। ओके, इसके यही तो प्रूफ है कि आप परमेश्वर के मुख के प्रकाश में हो, क्योंकि आपको भला बुरा सब दिखाई देता है, मालूम पड़ता है ना। तो ये आपको उजियाला है, इसकी वजह से दिख रहा है। अगर ये उजियाला है और दिख रहा है तो आपको अधिकार नहीं लेना है उसको उठा कर लोगों के ऊपर पत्थर बना के मारने के लिए। डोंट डू दैट। आई रिक्वेस्ट यू इन जीसस नेम, आई रिक्वेस्ट यू, स्टॉप दैट नॉनसेंस। ओके, क्योंकि परमेश्वर पसंद नहीं करता है वो। ठीक है, आपको पत्थर उठा के जो उजियाले से दिख रहा है उसको पत्थर बना के मत मारिए। ओके, मत मारिए। परमेश्वर का पावर जवाब है आप सबके लिए, हम सबके लिए। ठीक है, हमको सिर्फ परमेश्वर के काम करते जाना है, हमको परमेश्वर के उजियाले को लेके पत्थर बना के अपने शत्रुओं पर नहीं फेंकना है, अपने विरोधियों पर नहीं फेंकना है। आमीन। आपको मालूम पड़ता है, ठीक है, इट्स ओके, चुप रहो, आपका पावर जवाब देगा। आमीन। आगे देखो क्या लिखा है, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते वे वहां
प्रवेश करेंगे और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे, परंतु तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग में जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। पहले तो गलती की, परमेश्वर के पावर को तुच्छ जाना। ओके, अब उसी पावर को दिमाग में लेकर वो ये सोच रहे कि अब परमेश्वर का पावर ना, उस वक्त कैसा हुआ था ना, हम लोग ने मिस्र देश में से बाहर आए थे, हाँ, तो अभी वो पावर हम लोग लेके जाएंगे और विरोधी के साथ फाइट करेंगे। लेकिन बीच में जो काम किया वो लोगों ने क्या था, कुड़कुड़ाने का। उस समय जब उनके पास कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तब उन्होंने परमेश्वर की निंदा की। ओके, परमेश्वर के पावर को तुच्छ जाना, भरोसा नहीं किया परमेश्वर पर। वो एकमात्र एरिया ऑफ लाइफ हो गया, उन्होंने वहाँ ये नहीं याद रखा कि अब इसका भी जवाब परमेश्वर का पावर देगा, है ना। वो एरिया ऑफ लाइफ उसने याद नहीं रखा, तो उसका आगे जाके नतीजा क्या आ गया, उन्होंने गलती कर दिया। ओके, एक ब्रोकन पार्ट हो गया उनका, उन्होंने गड़बड़ी करके रखी, उन्होंने परमेश्वर के पावर को विश्वास में नहीं लिया। अब दूसरे जो स्टेप उठाना था वो गड़बड़ी का स्टेप उठा लिया, उन्होंने शत्रु से फाइट करने के लिए अपना दिमाग बना लिया। ओके, तो पहले शत्रु के साथ फाइट करो। ओके, फाइट करो मतलब वचन के साथ, आप वचन के अनुसार पावर को, परमेश्वर के पावर को आगे बढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर फाइट करेगा। ओके, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप फाइट करने की सोच लेते हो कि अब मैं प्रार्थना करूंगी, अब मैं आराधना करूंगी, मेरे शत्रुओं को मुझे पीछे हटाना है, मैं बहुत हो चुका, नहीं चाहिए मुझे, अभी इसका ज़्यादा सहना नहीं है। ओके, तो आप उठ जाते हैं दिमाग बनाकर। ओके, अब आप शुरू करते, आराधना करते, प्रार्थना करते, सब करते, लेकिन क्या आप जीतोगे? क्या ये आप कर रहे हो, क्या ये आपके सामने जो पावर जा रहा है, क्या वो आपकी इस सेवा को ग्रहण करेगा? क्या वो आपके इस इन्वेस्टमेंट को ग्रहण करेगा? ओके, कि वो आपके लिए जाके शत्रु के सामना करेगा? क्या वो ऐसा करेगा? ओके, क्वेश्चन मार्क। अगर वो चाहते हो कि आप ऐसा करना है, तो सबसे पहले बैठ के अपने पिछले ब्रोकन पार्ट्स परमेश्वर के सामने रख के सॉल्व करो। आमीन। क्योंकि उस ब्रोकन पार्ट्स का नतीजा होता है ये कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता है और हम फाइट करते निकलते हैं। ओके, हम आराधना करते निकलते हैं, हम प्रार्थना करते निकलते हैं, हम परमेश्वर से मांगते चलने लगते हैं, लेकिन ब्रोकन पार्ट जो है उसके बारे में हम कुछ भी निपटते नहीं हैं। समझा? हमको निपटने की ज़रूरत है उस ब्रोकन पार्ट्स में। ठीक है, अब देखो, तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। ओके, तो बार बार फिर परमेश्वर का वचन क्या आ जाता है प्रचारकों के द्वारा, माफ कर दो। ओके, पीछे हट जाओ। ओके, ज़्यादा जिद मत करो, चुप रहो। ओके, हाँ, शांत रहो। ओके, ये क्यों ऐसे वचन आता है? मैंने क्वेश्चन किया था परमेश्वर से, ऐसा वचन क्यों देता है खुदा? जब मैं फाइट में हूँ तब तुम मुझे ऐसा वचन क्यों देता है? कारण क्या है? मुझे परमेश्वर वो रास्ता दे रहा है सबसे पहले, तो अपने ब्रोकन पार्ट को पहले निपट। पहले तूने जो मुझे इंसल्ट किया, तूने जो पहले मुझे विश्वास में नहीं लिया, पहले उसके वक्त का याद कर और उसको तू क्या करना है पहले वो मेरे साथ बातें कर, बाद में मैं तेरे साथ चलूँगा। हालेलुया। तो इसके लिए ऐसे प्रचार हमारे सामने आ जाते हैं, माफ़ कर दो, चलो छोड़ दो, जाने दो, परमेश्वर निपट लेगा, ऐसा बोलता है परमेश्वर। ओके, 43 वचन आगे देखो, यह बात मैंने तुमसे कह दी परंतु तुमने न मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा
मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सईर देश के होरमा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। ओके, आगे देखो। तब तुम लौट कर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। हालेलुया। तो हम कभी भी आपका शत्रु के ऊपर अगर चढ़ाई करने का मन उठ गया है, आ गया है, हमेशा याद रखो, पहले एरिया ऑफ लाइफ आपका ब्रोकन पार्ट को रिपेयर करना है। डैमेज माइंडसेट को पहले परमेश्वर के सामने ठीक करना है। डैमेज मनस्थिति के अंदर से परमेश्वर को आप पहला स्थान देना है और परमेश्वर को माफ़ी मांगना है कि उस डैमेज की अवस्था के अंदर आपने नेगेटिव बातें बोली, आपने जो नहीं करना चाहिए था ऐसा बर्ताव किया, कुछ भी जो भी होगा उस समय आपने कुछ ऐसे जीवन जी लिया होगा, वो एरिया ऑफ लाइफ को आपने माफ़ी मांगना है परमेश्वर से, और परमेश्वर से बोलना है कि तू मेरा पावर है, तू मेरे आगे आगे चलता है और तू मुझे जिताता है। उस वक्त किए हुए मेरे गलती को माफ़ कर दे। ओके, मैंने तेरे पावर का अपमान किया, अब मेरे साथ हो और मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ा। मैं तेरा आदर करने को तैयार हूँ। ओके, आप जो जैसा परमेश्वर को मनाना चाहते हैं वैसे आप मनाइए, और परमेश्वर मान जाता है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो मन फिरा लेता है मैं उसके साथ दोबारा हो लेता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर को जीत लीजिए सबसे पहले, और फिर बाद में आप शत्रु का सामना कीजिए। ठीक है, ये वचन है ना वैसे ही कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शत्रु का फिर शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। आमीन। जंगल में भटकना 2 अध्याय पहले वचन से। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूम कर कुछ किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेयर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूम कर उत्तर की ओर चलो, और तो प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेयर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव पांव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेयर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। यो हम सेर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलत और एस्योन गेबेर को पीछे छोड़कर चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले, और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना। देखो, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों के अधिकार में किया है। अब मैं आपको बताती हूँ लूत कौन था। आपको पता है, परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ जनरेशन से वो। ओके, परमेश्वर उनसे पसंद नहीं करता है उनको, लेकिन परमेश्वर ने उनकी भी सुधि रखी। अन्य जाति लोग जो अभी पृथ्वी के ऊपर है, परमेश्वर ने उनको भी अपनी अपनी एक टेरिटरी देकर रखी है। ओके, और हमको वो बोलता है उनको सताना नहीं और उनके साथ लड़ाई छेड़ना नहीं। समझ में आया? अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हो तो आप जो अन्य जातीय हैं उनको सताना और लड़ाई छेड़ना, यहाँ पे आप परमेश्वर के वचन तोड़ते हो। समझ में आया? यहाँ एक एरिया ऑफ लाइफ है, आप इस चीज़ को आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर आपको बताए, ओके, कौन से एरिया ऑफ लाइफ में
आपने वचन तोड़ा है। ओके, उस तरह से परमेश्वर आपको फिर माफी देगा और आपके आने वाले युद्ध वो जीत के देगा। इसके लिए हम लोग मिशनरी काम में जाते हैं। तब हम मिशनरी काम करने से पहले सबसे पहले हम परमेश्वर को अधीन हो रहे होते हैं। ओके, सबसे पहले उस जगह को अधीन करते हैं, सबसे पहले उस जगह की गलतियों को परमेश्वर के अधीन करते हैं। ओके, क्योंकि हम वहाँ सताने और लड़ाई करने के लिए नहीं है, छेड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हम उन लोगों को परमेश्वर के आशीषों से भरपूर करने के लिए है। तो वहाँ का एरिया ऑफ लाइफ अन्य जातियों के हाथ में रहता है, हमारे पास नहीं रहता है ना। मिशनरी काम करने के लिए हम सिर्फ जा रहे, वहाँ क्या हमारे अधिकार लेकर नहीं जा रहे हम। ओके, दूसरों के गलियों में घूमने के लिए जा रहे हम, है ना। तो वहाँ का हमारा चाल चलन, हमारे उठना बैठना, स्पिरिचुअल पावर्स देख रहे होते हैं। ओके, और इसकी वजह से हमारा कुछ काम वहाँ बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर हम डिपेंड नहीं रहते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर के अधीन लेकर आते हैं उस जगह को, उस गली को, उस मोहल्ले को, उस शहर को, घर को, जिसके ऊपर भी हम मिशनरी काम करने के लिए निकलते हैं। ओके, तो सबसे पहले उसको हम परमेश्वर के अधीन लाते हैं। ओके, हम उसको पहले परमेश्वर के अधीन देने के बाद में फिर हम वहाँ पर वो जगह में उतर जाते हैं प्रभु का काम करने के लिए। तो उस समय हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे जाता है और हमारी सहायता करता है। ओके, फिर वहाँ पर अगर कोई हमारा विरोधी बन जाता है और वहाँ पर अगर हमारा कुछ नुकसान करने वाला कोई हो जाता है, तो वो हमको फाइट करना पड़ता है। ओके, वो हमको फाइट करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने परमेश्वर के अधीन सब कुछ दे दिया। अब परमेश्वर हमारे आगे आगे है, तो हमारे पावर को देखकर अगर कोई उठ जाता है हमारे विरोध में, तो हमको भी उसके विरोध उठना पड़ता है। ओके, और उसके विरोध उठे फिर हमको जंग जीतने का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारा ब्रोकन पार्ट रिपेयर है, परमेश्वर हमारे आगे आगे है, जंग तो हम ही जीतना है। आमीन। आगे देखो क्या है, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों के अधिकार में किया है। पुराने दिनों में वहाँ एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों के समान वे भी रपाई गिने जाते थे। परंतु मोवाबी उन्हें एमी कहते हैं, और पुराने दिनों में सेर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इस्राएलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार आए, और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोवाब की सीमा अर्थात आर को पार कर, और जब तू अमोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुँचे, तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अमोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूँगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। ओके, तो ये सारा चीज़ हमने मिशनरी कामों के वक्त में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। ओके, हम सब ने इसको इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी अपने अपने रास्ते दिए हैं, हम उनके ऊपर ज्यादती नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है आगे, वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई जिन्हें अम्मोनी जुम्मी कहते थे, वे वहाँ रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने इनको अम्मोनियों के सामने से नष्ट कर डाला, और उन्होंने उनको उस देश में निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे, जैसे कि उसने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नष्ट किया, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। वैसा ही अव्वियों को, जो अज्जा नगर तक गांवों में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने, जो कप्तोर से निकले थे, नष्ट किया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे। तब तुम
अब तुम लोग उठकर कुछ करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो। देखो, जो परमेश्वर हमको देता है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। ध्यान रखो इस बात को, क्योंकि ये एरिया ऑफ लाइफ है जो हमारे अंदर अज्ञानता रहती है और हम कुछ भी कर निकल पड़ते हैं ना, दैट इज़ नॉट फेयर थिंग। ओके, वो सही रास्ता नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा पावर परमेश्वर की ओर से, वैसे ही अन्य जातियों के पास भी परमेश्वर ने कुछ ऐसा रास्ता रखा है कि वो भी अपनी तरफ से अपने रास्ते चल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ज्ञान नहीं होगा तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। हमको अभी परमेश्वर जो चीज़ें देता है उस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमको इसके लिए नया नियम बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये देखो, ये एरिया ऑफ लाइफ है। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको बोला कि मेरी सामर्थ और अधिकार मैं तुमको देता हूँ, जाओ और क्या करो, पृथ्वी भर जगह जगह जाकर मैंने सिखाई हुई बातें सिखाओ और बपतिस्मा दिलाओ। हालेलुया। और मैं तुम्हारे साथ चिन्हों के साथ काम करता रहूंगा और जाहिर करता रहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, तो यहाँ पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा ये क्या था, यहोवा पावर है और वो हमारे आगे आगे चल रहा है। ये कैसे पता चलेगा, ये वचन हमको याद रखना है। यीशु मसीह ने बोला, अब जाओ पूरी पृथ्वी के ऊपर, मैं पूरा सारा यूनिवर्स के अंदर सब कुछ का अधिकार और सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूँ, सारे पृथ्वी पर जाके सुसमाचार सुनाओ। तो अब हमारा पावर बढ़ जाता है। समझ में आया? अब हम फाइट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं यीशु मसीह का राज्य लाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं परमेश्वर तेरी धार्मिकता चाहती हूँ, यहाँ पर परमेश्वर अंधकार की प्रधानता खत्म कर, ये ज़मीन तेरे लिए होने दे, ये घर तेरे लिए होने दे, हमारा परिवार तेरे लिए होने दे, यहाँ से हमारे सब कुछ जो भी है वो तेरे महिमा के लिए होने दे। ये शहर को हम मांगते हैं, ये राज्य को हम मांगते हैं, ये देश को हम मांगते हैं। अब हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, जहां हमको परमिशन हाथ आ जाता है परमेश्वर का। ओके, अब जंग हम ही जीतेंगे। आमीन। अब आगे देखो, और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। बताओ मुझे। ओके, बताइए, आप बताइए मुझे अभी इसके बारे में, है ना, कि परमेश्वर का पावर जब आगे जाता है तो आपके ऊपर जो अटैक आते हैं, हाँ, परमेश्वर का पावर जब आगे जा रहा है तो आपके ऊपर अटैक इसीलिए आते हैं कि वो पावर आपको संभालता है कि नहीं, देखना चाहते हैं वो। ओके, जब आप ध्यान देना, बाद में उनकी गवाहियाँ क्या बनती है, हाँ, बाद में वो लोग क्या बोलते हैं। ओके, वो टेस्टिमनी वो लोग नहीं बताएंगे कि हमारे पावर ने उनके ऊपर क्या बिताई, वो नहीं बताएंगे। अगर किसी ने बताया तो आप वो गवाहियों को सुनो जो लोग बताते हैं, जो शैतान के काम करने वाले थे लेकिन उसके बाद वो प्रभु में आ गए, वो बताएंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारे पावर का विरोध करते हैं। ओके, तो हमारे पावर का विरोध करने के बाद हमारे पावर ने जो उनको जवाब दिया उससे उनकी क्या हालत हो गई, जॉन रेमिरेज की गवाही को सुनिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो इस तरह से उनकी जो गवाही है, हमारा पावर उन पर क्या बिताता है वो नहीं बताते हैं, वो नहीं बताते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये कौन करता है, ये क्या है, उनके ऊपर भी बीत रही है, वो बता नहीं रहे, लेकिन ये क्या है, ये हमारा पावर उनके ऊपर डाल रहा है बराबर से, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, आगे पीछे बराबर से वो फिट एंड फैट कर रहा है उनको। ठीक है, तो इसके लिए हमारे व्याकुल होने का ज़रूरी नहीं है। ओके, ये जंग हमारा यहोवा जीत गया है।
आमीन। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। राजा सीहोन की पराजय, 26 वचन से आगे। अतः मैंने कदेमोत नामक जंगल से हेशबोन के राजा सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ से चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ न मुड़ूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पाँव पाँव चले जाने दे, जैसा सेईर के निवासी एसावियों ने आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू भी मुझसे कर। इस रीति मैं यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशबोन के राजा सीहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने न दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रगट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वश में कर देने पर हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सीहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ आया, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए, और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई न छूटा। परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया, और उन नगरों की लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोअर नगर से लेकर और उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहाँ हम नहीं गए। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें कौन से रास्ते चला रहा है, परमेश्वर का वचन हमारा किस रास्ते से हमको क्या बोल रहा है, प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं, ओके, हमको क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हमको शायद से हमारी सिचुएशन से मैचिंग नहीं होता है, ऑपोजिट होता है, ऐसे भी प्रचार कभी कभी आ जाते हैं। हमने क्यों उसका सुनना है, क्या कारण है कि हमने उनका सुनना है, ओके। ये सीक्रेट क्या है, परमेश्वर चाहता है हम वो फॉलो करें, ओके, ताकि हम नुकसान में ना जाए, ओके। तो चाहे हमारे साथ कैसा भी कुछ भी होता रहे, लेकिन जब परमेश्वर के दास दासी हमारे सामने कोई वचन बताते हैं तो हमने उसको फॉलो कर लेना है। इसका कारण क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम अज्ञानता में कुछ गलती करने ना बैठे और उसके कारण हम नाश ना हो जाए, ठीक है। तो हमारी अज्ञानता को हमारे सामने तो दिख नहीं रहा है, हमको लगता है हम सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भाई लेकिन बहन, जब ये वचन प्रचारकों के मुंह से निकलते हैं तो वो एक हमारे लिए उजियाला होता है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, ओके। जो हमको परमेश्वर बचने का रास्ता होता है, जो हमको नहीं मालूम हमारी गलतियां, वो परमेश्वर प्रचारकों के मुंह से हमको बता रहा होता है, ताकि हम शत्रु के सामने जाकर हार ना जाए। आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। पहले हम 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान जो पढ़ा उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपकी सच्चाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। फिट एंड फिक्स कीजिए हमें, ईश्वरी रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, एक्ट्स 27 चैप्टर 21 वर्स से 31 वर्स, सैम्स 75, 76, 77। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रेरितों के काम 27 अध्याय 21 वचन से 31 वचन तक, भजन संहिता 75 अध्याय 76 अध्याय 77 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में। जब हम अकेले में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा यह व्यक्तिगत समय रहता है। इस व्यक्तिगत समय के अंदर अगर हमने पढ़ना है तो ये व्यक्तिगत समय में परमेश्वर हमारे साथ कुछ बातें कर सकता है, हमको बदलने के रास्ते दे सकता है। जब हम बदलने के रास्ते प्राप्त करते बदल जाते हैं और हमारा परमेश्वर हमारे मन के अंदर की बातों को वचन में से सिखाता है,
ये समय रहता है कि हम परमेश्वर की उन्नति को भी प्राप्त करते हैं, हम अपने अंदर सुधार भी पाते हैं। इसके लिए परमेश्वर के वचन हम अकेले में बैठने की कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं आप सभीयों ने वैसे करना है, आप अपने तरीके से परमेश्वर का आत्मा जैसा आपको कहता है वैसे आप पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है, परमेश्वर का आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें मदद कर, हमें फिट एंड फिक्स कर, इन वचनों में हमें परमेश्वर के ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।